रेड एंड गोल्ड झंडे लहरा रहे हैं। प्रिंस ने भी बढ़िया गेंदबाजी की है। इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेला है। निहायत ही खूबसूरत शॉट है ये सबसे बेहतरीन शॉट, बहुत ही लाजवाब शॉट था। और अब चलते हैं गेलिन के पास, देखते हैं उनके साथ कौन है। लेकिन एक बार फिर से देख लेते थे किस तरह से खेला है ये शॉट। बिल्कुल जगह में खेला, गैप में खेला। हालांकि 3 फील्डर तैनात किए गए थे और अब वक्त आ गया गेलिन के पास जाने का। This is what it all boils down to. The Chennai Rhinos versus the Telugu Warriors, and with me is a man who we could easily say is solely responsible for the absolutely fantastic form of the Telugu Warriors. Sir, firstly tell me, how is it working with players that are actors? Amazing, because I think they are good actors, but they're excellent cricketers. What I've seen over the last 1 month, I think we had a lot of practice nets, and matches, and they give the 100%. I think they're very skillful, but they could absorb anything, whatever I said to them, and it's been amazing working with them. Well, it is absolutely amazing and a delight for us to watch them play. What do you think is the strength of this team as opposed to any other team that played here? I think we have all-round strength, because I think we are good in all departments of the game. And I think that we can bowl well, I think bat well, and feel better than any other team. The only thing is that how we play in this match is very important, because this is a big event for us. I think it's the first time they come in the finals, and hope we win it. Absolutely. Well, the teammates definitely have a lot of amazing things to say about you. We'd like to know, how is your journey in this entire CCL Season 5 with the Telugu Warriors? Well, it's new for me, to be honest with you, but it's a good experience. I enjoyed every moment of it. I've been with them for some time now. I know them personally very well now, and they've been fantastic cricketers. Have you watched any of their films, sir? No, I haven't. I've not heard about them at all. I think Akhil was the one. I think he used to come to my academy in Mumbai to play. But apart from Akhil, I have not seen anybody. I have not heard about anybody. Well, now you do have to go back and watch all their films, because they've listened to every single thing that you've told them to do, isn't it? Well, they're superstars here, to be honest with you, and everybody just goes absolutely wild. When they come on the ground. And of course, besides that, I think they are lovely people. Sir, a lot of home support here for the Telugu Warriors. Do you think they can make it this time and take the title for the CCL Season 5? Hopefully, because I think we have been extremely well in the entire tournament. Every match I think we won, and we have lost only 6 to 7 wickets in the entire tournament. So we're in great form. I hope they continue today as well. Well, we hope to see you again next season with the Telugu Warriors, and you never know, if they make it this time, I'm sure all credit goes to you. Thank you so much for joining us. It's over to you guys. पावर प्ले समाप्त हुआ। 6 ओवर के बाद 32 पर 1 चेन्नई राइनोज, और अच्छा संघर्ष देखने को मिल रहा है। शुरुआत में एक झटका मिला था चेन्नई को, लेकिन उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप यहां पर बनी है। पावर प्ले की समरी 36 डॉट बॉल, माफ कीजिए, 6 ओवरों में 32 रन बने और 1 विकेट गंवाया है। 4 चौके पड़े, 5.33 की औसत से रन बने हैं। कुछ खास गति के साथ रन नहीं बने, लेकिन गति को तेजी प्रदान करने की क्षमता है इन दोनों खिलाड़ियों के पास। चलिए, एक बेस तो बना लिया उन्होंने, क्योंकि अगर आपने 6 ओवर्स तक एक ही विकेट खोया है, तो अब आपके पास 14 ओवर है 9 विकेट खर्चने के लिए। और यहाँ से अगर आप थोड़ी सी परसेंटेज अपनी शॉट्स की और रिस्क फैक्टर को चेंज कर दें, तो हर्ज नहीं है उसमें, क्योंकि अपने पर्सनल स्कोर से ज्यादा है कि आपका ये फाइनल है। आप ऐसा स्कोर बनाने की कोशिश करें जो कि एटलीस्ट आपके गेंदबाज जो खुल के गेंदबाजी कर पाए। अब यहाँ पे मुझे टेंटेटिव अप्रोच लग रही है इन दोनों बल्लेबाजों की। थोड़ा बहुत दबाव में जूझ रहे हैं यहाँ पर चेन्नई के बल्लेबाज, और
इस बार चहलकदमी की थी और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी। रघु अपना चौथा ओवर डाल रहे हैं, बहुत ही किफायती रहे हैं, 12 रन दिए सिर्फ और एक मूल्यवान विकेट भी लिया है उन्होंने। ये उनका चौथा ओवर, 13 डॉट बॉल फेंके हैं। तो बढ़िया गेंदबाजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नियंत्रित गेंदबाजी हो रही है, वो निरंतरता जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कल भी बढ़िया गेंदबाजी की थी, आज भी बिल्कुल विकेटों पर निशाना साधा हुआ है और ज्यादा जगह नहीं दे रहे, फलस्वरूप बल्लेबाज खुलकर खेल नहीं पा रहे हैं, शॉट्स नहीं लगा पा रहे हैं बड़े। इस बार बाहरी किनारा, सिर्फ 1 रन मिलेगा। बिल्कुल, अब थोड़ी सी पेस पिक करनी पड़ेगी खेल की, थोड़ा सा इंटेंट दिखाएं, थोड़ा सा अर्जेंसी दिखाएं, क्योंकि यही मौका है। इसके बाद अगले साल इन्होंने खेलना है और टाइम नहीं होता आपको कैचअप करने का T20 में। अगर आपने 1-1.5 ओवर सोचने में लगा दिया तो उसकी फिर आप रिकवरी करते आप और समय वेस्ट करेंगे। 50 ओवर में आप थोड़ा समय ले सकते हैं। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप 8-10 गेंदें और ज़ाया कर सकते हैं, क्योंकि इतना समय रहता है कि आप उसको कैचअप कर लें। बिल्कुल ज्यादा दबाव अपने आप पर नहीं बनने देना है यहाँ पर चेन्नई के बल्लेबाजों को। और ये दबाव वाला मैच है अतुल, और दबाव को झेलना पड़ेगा और कहीं ना कहीं लग रहा है जूझ रहे हैं उस दबाव में चेन्नई के बल्लेबाज। यार दोनों ही बल्लेबाजों ने रन बनाए, तो इसका मतलब यह है कि फॉर्म में है। और जब बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म होता है, और आप के कैरियर में भी ऐसा कुछ आया होगा, इसके बारे में अगले ओवर में बात करेंगे। 37 पे 1। पर 1 चेन्नई राइनोज 7 ओवर के बाद आज टॉस जीता था तेलुगु वॉरियर्स ने, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और रघु ने अपने 4 ओवर खत्म किए, 1 विकेट लिया 15 रन देकर। अब ग्राउंड से बाहर थोड़े थके थके से लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो किरदार था बखूबी निभा कर बाहर चले गए हैं। इकोनॉमी की अगर बात करें तो रघु एकदम शीर्ष पर, बहुत ही कंजूस गेंदबाज मानता हूँ, 5.48। उसके बाद है चेन्नई राइनोज के विष्णु। तो जहां तक रघु के बारे में बात करें तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है इस सत्र के CCL में। गेंदबाजी में बदलाव, सम्राट आए हैं पार्ले 2020 GN से और एक वाइड से शुरुआत। और यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में एक बदलाव हुआ है, अतुल वासन के स्थान पर आ गए हैं अजय। स्वागत है आपका अजय। शुक्रिया देवांग। जी हाँ, जैसे आप कह रहे थे कि अब तक गेंदबाजी काफी बढ़िया रही है। सम्राट को अब लेके आए कप्तान पार्ले GN से, काफी विकल्प नजर आते हैं हमेशा ही। अब जब भी तेलुगु वॉरियर्स की टीम मैदान पे उतरती है, ये हमेशा अच्छा रहता है किसी भी कप्तान के लिए। अगर आप देखें, अब प्रिंस ने भी अब काफी बढ़िया कार्य किया है। रघु अभी 4 ओवर अपना पूरा कर चुके हैं, 15 रन ही खर्चे हैं, तो अभी तक पक्ष में रहा है सब कुछ तेलुगु वॉरियर्स के। टॉस भी उन्होंने जीता, आगाज काफी बढ़िया रहा है। और साइड स्क्रीन के पीछे ही मुझे लगता है जो होर्डिंग है उसकी रिफ्लेक्शन आ रही थी, जिसको अब नीचे कर दिया गया है। पर फिलहाल एक जो पहल है हृदय फाउंडेशन की, बहुत बढ़िया, और इसके बारे में जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। इसका बार बार दिमाग हम जिक्र करते रहे हैं। जी उम्मीद करते हैं और भी लोग आगे आए इस पहल में। इस बार अपील करते हुए, काफी विश्वास भरी अपील, और उंगली उठती हुई
काफी वक्त लिया यहाँ पे एम्पायर ने, पर अंत में संतुष्ट हुए। और ये देखिए खेमा तेलुगु वॉरियर्स का, और ये बहुत ही बड़ा झटका। हालांकि गेंद लेग स्टंप के ऊपर थी और मैं मानता हूं कहीं ना कहीं ये बड़ा ढीला शॉट खेला और अपना विकेट गंवाया। ये विकेट लेने वाली गेंद नहीं थी, लेकिन यहां पर बहुत ही बड़ा झटका पड़ा है चेन्नई को। विष्णु लौटे पेविलियन में 21 बनाए, चेन्नई 38 पर 2। अड़तीस पे 2 चेन्नई राइनोज। पिछला विकेट जो गिरा है विष्णु का, बहुत बड़ा झटका, क्योंकि ये सेट हो चुके थे। अच्छी लय में पूरे टूर्नामेंट में अब आए हैं शांतनु, और ये सीसीएल करियर 21 मुकाबले 182 रन, औसत ज्यादा नहीं, पर आज जिम्मेदारी जरूर है उनके कंधों के ऊपर। आज क्या करके दिखाते हैं, काफी उम्मीदें हैं टीम को, पर यहाँ पे बढ़िया गेंदबाजी, सम्राट पूरा चकमा दे रहे हैं, लाइन बढ़िया रख रहे हैं। लगातार ऑस्टम के बाहर गेंदबाजी करते हुए सम्राट ज्यादा रूम नहीं दे रहे बैट्समैन को स्ट्रोक खेलने के लिए। ये गेंद अगर आप देखें, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा कोन बदला, अंदर की तरफ आई, फिर से बिट टेंटेटिव, वहां पे अब आगे कदम जरूर निकाला था, 1 रन मिलता हुआ। दिवांग गांधी के स्थान पे अब एक तब्दीली है कमेंटेटर बॉक्स में, मेरे साथ जुड़ चुके हैं एयाज मेमन, स्वागत है आपका। धन्यवाद। 39 पर 2 और काफी कठिनाई में। यहां से कुछ एक पार्टनरशिप की जरूरत है, अगर पारी को संभालना है, 150 के करीब टोटल ले जाना है, तो यहाँ पर ये पार्टनरशिप, ये पैर खेलना बहुत जरूरी है। जी हाँ, जितना लंबा खेलेंगे उतना बढ़िया है, पर अगर आप विक्रांत की बात करें, आज कल भी लगभग बहुत धीमी शुरुआत थी, पर इनिंग को बहुत बढ़िया तरीके से पेश किया। पढ़ लेते हैं, ये था जो पिछला विकेट गिरा था लेग स्टंप के बाहर, और ऐसा लगा डिफ्लेक्शन जरूर हुई है, थोड़ी डिविएशन नजर आई, और एकदम अपील की थी सम्राट ने, पर अंपायर ने काफी वक्त लिया वो निर्णय देने के लिए, उंगली अंत में जरूर उठाई। और इस तरह के सिंगल्स ले तो स्कोरबोर्ड भी चलता रहेगा आगे। शार्प सिंगल, अच्छा कॉल, अच्छा जजमेंट। दर्शक यहाँ पर काफी तादाद में आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा जरूर जो टर्न आउट है और बढ़िया नजर आएगी। कल काफी बढ़िया क्राउड था दोनों सेमीफाइनल जब चल रहे थे। 8 ओवर की समाप्ति 42 पे 2। Innovator was Chennai Rhinos 42 for 2. बढ़िया माहौल नजर आ रहा है, बढ़िया वातावरण। यहाँ पे अगर इमारतों की बात करें, अब ज्यादा बड़ी इमारतें खासकर पहले 5 ओवर में नजर नहीं आई। 1 ओवर बढ़िया रहा, 11 रन जिसमें आए, और अब जरूरत है चेन्नई राइनर्स को कुछ बड़े ओवर की दरकार यही है। 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, अब रन गति में जरूर सुधार करना होगा। याद रखिए तेलुगु वॉरियर्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, और टर्नआउट की आप बात कर रहे थे आज,
काफी बढ़िया तादाद में दर्शक आए आज। ये हमारा लुत्फ दे रहे हैं, होम टीम भी खेल रही है तो उसका मेरे ख्याल से एक तरह से होमेज देना होगा। और स्टार्स हैं फिल्म इंडस्ट्री के, उनकी खुद की एक अपील होती है, खींच है। कल हम अयाज जब यहाँ थे तो चेन्नई राइनोज की टीम मैदान में थी और एकदम धनुष आ गए, जो एक बहुत बेहतरीन एक एक्टर है। अभी उनकी एक पिक्चर भी आ रही है, बहुत जबरदस्त, उसमें यही माना जा रहा है उनकी एक्टिंग भी है, अमिताभ बच्चन भी उसमें है, शमिताभ उस पिक्चर का नाम है। उनके आने से ही जो माहौल है और जो टीम की परफॉर्मेंस है वो अलग स्तर पे चली गई। आज भी देखिए काफी सपोर्ट है चेन्नई राइनोज के लिए, कि ब्रांड एम्बेसडर्स यहाँ पे हैं पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए। यही उम्मीद कर रहे हैं कि अब यहाँ पे एक साझेदारीपन पे कि शांतनु अभी भी आए हैं बैटिंग करने के लिए, मात्र 2 पे हैं। विक्रांत एक बार फिर उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, कल स्टार रहे थे विक्रांत, जिस प्रकार की पारी खेली थी उन्होंने सेमीफाइनल में। विक्रांत है स्ट्राइक पर, पुल किया है, देखना है वहां पर फील्ड होता है या नहीं, लेकिन अच्छी फील्डिंग, थोड़ा सा चूके थे डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर, लेकिन रोका, एक ही रन केवल, बहुत अच्छी फील्डिंग। यहाँ पे गेंदबाजी में बदलाव किया, रघु के स्थान पे जो टीम ओनर है सचिन जोशी, वो आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और पूरी टूर्नामेंट में बढ़िया कार्य किया। पर यहाँ पे फील्डर भी बढ़िया कार्य करते हो, जैसे आपने कहा, बाद में अपने आप को संभाला और बड़ी चीज गेंद को अंदर धकेला। जब भी आप जो स्कर्टिंग है, जो फेंस है, उसके बहुत करीब रहते, कभी भी आसान रहता नहीं, अपना संतुलन बना के रखा। कॉलेज एंड से आते हुए बाएं हाथ के स्लो गेंदबाज सचिन जोशी, पर एक बड़ी छाप छोड़ी है इस टूर्नामेंट में उन्होंने। अच्छे खिलाड़ी हैं, पिछले सीजन में भी मैंने उन्हें देखा था खेलते हुए, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, शौकीन है क्रिकेट के। और ये मेरे ख्याल से एक नाजुक घड़ी है इस मैच की, 8 ओवर निकल गए हैं, 43 पर 2, यहाँ पर 1 विकेट गिरती है तो चेन्नई राइनोज बहुत मुश्किल में आ सकती है, लेकिन यहाँ से अगर पार्टनरशिप बनती है तो फिर बैलेंस चेंज हो जाएगा। यह सचिन जोशी का आप जिक्र कर रहे थे कि बढ़िया एक खिलाड़ी है, हरफनमौला खिलाड़ी है, 6 विकेट भी ले चुके हैं। पर सबसे बड़ी बात है इस सीजन है आज बल्ले के साथ बहुत बढ़िया फॉर्म में रहे हैं, बहुत बढ़िया स्टार्ट दिए हैं। प्रिंस, कल भी प्रिंस की तरह ने बल्लेबाजी की, और ये जोड़ी है, सलामी जोड़ी है सचिन जोशी की और प्रिंस की, ये बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं। और उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि कुछ लेवल तक खेले हुए हैं सचिन जोशी। ये है देखिए बैटिंग एवरेज, क्या जबरदस्त आंकड़े हैं, 63 का एवरेज, और ये बहुत अच्छा टर्न कर दिया है, देखना है कि रोक पाते हैं या नहीं। और मेसी की तरह फुटबॉल खेलते हुए वहां पर अच्छा सेव, 2 रन बचाए वहां पर। जी हाँ, अंत में अगर आप देखें तो पैर से जरूर रोका, बहुत बढ़िया बैटल किया था, बहुत लेट खेला और काफी फाइन गेंद गई थी। अंत में जैसे आज कह रहे थे, जी हाँ, थोड़ा फुटबॉल खेली और कहना कि गेंद को अंदर धकेला, पर काफी वक्त था 2 रन लेने का। बढ़िया गेंद, बिल्कुल जड़ पे, इतना आसान नहीं इसको धकेलना। अच्छी वेरिएशन ला रहा है अपनी गेंदबाजी में, और लूप है उनकी लेफ्ट आर्म स्पिन में। ये देखें बॉलिंग, ये बैटिंग एवरेज, और वाइड गेंद लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। ये है इनके आंकड़े, 63 है बैटिंग एवरेज और 15 से थोड़ा सा ही ज्यादा बॉलिंग एवरेज। 6 विकेट भी लिए है, 189 रन, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। यह कमाल के ऑलराउंडर हैं और हमेशा उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। अंतिम गेंद पे 1 रन और आता हुआ, 9 ओवर की समाप्ति, 48 पे 2 चेन्नई राइनोज। In the final was Chennai Rhinos 48 for 2.
माहौल यहाँ पर बनता हुआ। 48 पर 2 है स्कोर 8 ओवर के बाद। और गेंद फेंकेंगे विष्णु, माफ कीजिए सम्राट। वाइड से शुरुआत की इस ओवर की। यहाँ पर थोड़ा डिसिप्लिन बहुत जरूरी है गेंदबाजों को। हालांकि 2 सफलता मिली है, लेकिन एक पार्टनरशिप बनती है तो बिल्कुल तराजू दूसरी तरफ झुक सकता है। यार एक चीज जो हमने कल भी देखी थी, ये जो विकेट है बहुत बढ़िया है। मतलब इसमें उछाल है, अगर आप सेट हो जाएं तो रन ही रन है। और विक्रांत अगर आप देखें, कई बार ऐसा लगता है थोड़ा से सिचुएशन को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, उसके बाद एक बार सेट हो जाएं, बड़े शॉट्स के लिए जाते हैं। और कल भी सेमीफाइनल में लगभग वही किया था, इस बार टाइमिंग सही बैठा नहीं। और अच्छी फील्डिंग मिड विकेट क्षेत्र में सचिन जोशी ने पांव लगाया और निश्चित तौर पे 1 रन बचाया वहां पे। अभी गेंदबाजी करके भी गए हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा एफर्ट। अगर सचिन जोशी बीट हो जाते थे, यही स्ट्रोक था और पैर से रोका उसे। ऑन द राइज कवर ड्राइव मारने की कोशिश, लेकिन चूके। Chennai Rhinos 50 हो गया है स्कोर। Chennai चेन्नई राइनोज ऑफ स्टंप के बाहर गेंद। और ये उठा दिया है बॉलर के सर के ऊपर से। देखना है बीट कर, बिल्कुल सीधा तीर की तरह गया इसको। हालांकि लॉन्ग ऑन पे फील्डर है, लेकिन किसी को कोई मौका नहीं। इसको कहते हैं सबसे सेफ एरिया पे शॉट खेलना। बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला। देखिए किस प्रकार गेंद की लंबाई को बहुत जल्दी पिक किया। स्लॉट में गेंद थी पर बेहतरीन शॉट। ऐसी शॉट जब आप खेलते हैं बतौर एक बैट्समैन, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। वही जानते हैं जो समर्थक हैं चेन्नई राइनोज के, उनके कप्तान जीवा भी बहुत खुश। क्या यहाँ पे नजारा है, क्या बढ़िया माहौल। ये अंतिम मुकाबला है, बड़ा फाइनल है। दोनों सबसे बढ़िया टीमें प्रवेश कर चुकी हैं फाइनल में। चिंताएं बढ़ती हुई दोनों खेमों में। जैसे आप कह रहे थे, ये जो 4-5 ओवर रहेंगे 10 से 15 के बीच में, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि यही दर्शाएगा कितना स्कोर चेन्नई राइनोज खड़ा कर पाती है। स्क्वायर ड्राइव किया, लेकिन वहां पर कवर करने के लिए है, बाउंड्री रोकने के लिए फील्डर मौजूद। सिंगल के बाद 55 है स्कोर। ऐसा लग रहा है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री आ गई है, तमिलनाडु की भी और तेलुगु की भी। यह कल भी अब ये देखने को मिला था। कल तो मुंबई हीरोज का मुकाबला था। कर्नाटका बुलडोजर्स भी हार गई अब सेमीफाइनल में, पर काफी बढ़िया उन्होंने भी संघर्ष किया। कल दोनों ही सेमीफाइनल बहुत दिलचस्प रहे। हालांकि मुंबई हीरोज ऐसा लग रहा था जो उनके पास बैटिंग लाइनअप है, 20 या 30 रन ने कम बनाए, पर एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिला। और आज भी अगर आप देखें, लाल झंडे काफी नजर आ रहे हैं, लहर सी नजर आ रही है। और कुछ ही देर में पता चलेगा अब ये संस्करण किसके नाम रहता है। क्या नया एक कोई चैंपियन मिलेगा। 10 ओवर की समाप्ति, 56 पे 2। And the final was Chennai Rhinos 56-2. छप्पन पर 2, 10 ओवर के बाद एक पार्टनरशिप यहां पर बनती हुई विक्रांत और शांतनु के बीच। विष्णु थे बल्लेबाज जो आउट हुए थे 21 बनाकर। मेरे साथ अब जुड़े हुए हैं देवांग गांधी, खास कोलकाता से आए हैं यहाँ पर ये टूर्नामेंट और ये मैच कवर करने के लिए फाइनल। देवांग। यस भाई, आप कल नहीं आए थे, लेकिन मैं तो कल आ गया था। आपकी फ्लाइट छूट गई थी, लेकिन मैं वक्त पर पहुंच गया था। और कल वाकई में